Awesome. So we are live. Hello everyone. Assalamu alaikum. So today, it's going to be a really amazing discussion because I have Zainab Hamid with me. She and we have known each other for a very long time. And I really wanted to talk to her about the work that her team is doing, she's doing for the EdTech landscape in Pakistan. I've seen the app that they have built. I've also used it and tested it a little bit also while I was working with one of their partner companies. So I have a lot of knowledge about what the work that they are doing, but I would really love for her to tell us about her side of the story and also to introduce herself because she has a very, very long intro. And I would like her to tell us all about what she has been up to. So, welcome, Zainab, over to you, and let's start with an introduction. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Faiza. It's always lovely to talk to other women who are in this space, who understand the challenges of this space to a certain extent, and to share what you've been doing. I think sharing से बहुत ज़्यादा learning होती है, and what I would want to do is also hear from them while we speak and while we're talking about it, so that we can have an engaging session, inshallah. So I am Zainab Hamid. Some may know me here, and I think I'm one of the first few people who joined the forum also. That's true. मैं उस वक्तों से आईटी में हूँ जब आईटी में खवातीन जो है ना वो चीदा चीदा होती थी. So we were very few, very very few. So फैजल we're going to be bilingual on this, right? उर्दू इंग्लिश मिक्स चलेगा ना हमारी ऑडियंस के लिए. So हम लोग अ, जब जब किसी को भी नहीं देख पाते थे तो दो चार लोग होते थे जिनसे हम कंसल्ट जहाँ आ रहा होती थी, और एक दो ऐसे लोग होते थे जिनको हम अपना मेंटर कहते थे, या हम उनको लुकअप करते थे. एक यास्मीन नानजियानी थी सिद्धार्थ में मेरे साथ, तो वो बहुत कम लोग थे आईटी में जो जो स्पेशली फीमेल्स, बिकॉज इट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ फील्ड फॉर फीमेल्स. तो मगर हम सास में बहुत सारी लड़कियां ग्रेजुएट होती थी, और आई थिंक वो एक बैच के बैच निकल कर आए हैं जिन्होंने फिर ये टीम्स बनाई हैं, लीडरशिप रोल तक पहुंचे हैं हम लोग. तो आई एम ग्रेजुएट ऑफ फास्ट एंड डिड माई एमबीए, बिकॉज एक फास्ट के प्रोफेसर ने मशवरा दिया अगर पाकिस्तान में रहना है तो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस ना करें आप एमबीए करें, बिकम अ लिटिल मोर जनरलिस्ट. एंड आई थिंक दैट रियली paved the way for me, because then I started understanding the business language and the technology language, and then the need for being a bridge. तो उस वक्त ज्यादा थी, अबाउट 2 decades ago ज्यादा थी. अभी तो लोगों को फिर भी दोनों लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत समझ आ जाती हैं. उस वक्त ये दोनों लैंग्वेजेस, एक को टेक्नोलॉजी समझ आ रही थी, एक को बिजनेस, दोनों लैंग्वेजेस नहीं साथ चलती थी. एमबीए करने के बाद आई डिड अ लिटिल स्टिंट विद फैमिली बिजनेस. Then I joined IBA, taught there, did development work there, as a programmer analyst. Then did a startup. उस टाइम पे स्टार्टअप नहीं कहते थे उसको. वो 2000 के बूम में जब स्टार्टअप्स मरे ना, उससे पहले का स्टार्टअप है ये. मगर हमने एक ईआरपी डिजाइन किया, तो पैटर्न्स, डिजाइन, आर्किटेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर बहुत समझ आया वहां पे. And work with one of the best of best professors, Dr. Irfan Haider, and learned a lot from him. He's the way he thinks, and बहुत कुछ आप सीखते हैं ना. तो उसके बाद I joined Siddharth Haider and I did my CISA. So I went into consulting, did my CISA, and joined Siddharth Haider. Long story short, in 5 years, Siddharth Haider and Ford Road split. So we became part of Ford Road's EY. Did few secondments in a small one, a short one, 6 months in UK, 6 months in US. Got the exposure कि दुनिया में हम कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है. We're very much at par, especially in technology. एंड स्पेशली जैसे हम तो सीसा करके गए थे कुछ लोग, तो वहां तो वो लोग सीसा भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे. तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के वी वर, इफ आई वर टू से फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ देम, तो गलत नहीं होगा. फिर
उसके बाद I joined Engro Foods as a startup. It was Engro Foods started in 2006. I joined 2008, and I ended up setting up their IT. And by 5 years, the whole system was set up. And hang हो गया है क्या? नहीं ना? We can hear you. And we set up the systems, and by 2013, it was almost every process was digitized. And Afghanistan, Iran, and Pakistan did a lot of regional projects. Gave me a lot of exposure into multicultural, multi-country, different user scale, and a different industry also. Pharma is a very different industry from FMCG. Like any other industry, all industries are different, but pharma is very unique in the sense that you don't sell to the final beneficiary, you sell to someone else, and that person positions it for your final or chooses it for your final beneficiary. So, which is the healthcare professionals, the doctors. So that was a big learning. And then call it a sabbatical now. After 5 years of T Square, when I left my job, just say one fine day, but then there was this a few things happened in life, and I wanted to do something for a bigger impact. So I left my job at GSK and I started T Square. Now, what is T Square? T Square is a dream that two of us had, and many of us had. Sadia Junaid, my partner, and I thought that she's a learning and development expert, and I did technology all my life. So we thought if we combine our skills, we can probably create something which can answer at least one educational challenge of Pakistan. We can't address everything, we can't solve everything, but we can do at least one. So this is the target we gave ourselves, and सर जोड़ के बैठ गए 6 महीने बातें की पूछा समझा प्रॉब्लम को because ये प्रॉब्लम स्पेस हमारा प्रॉब्लम स्पेस नहीं था. So we understood, and then we met few people like our partner Shamim Rajani from Genetech, and everybody was like a little skeptical, but we said कि, and a lot of people were very supportive. So it's not like everybody was skeptical. We were learning how to go about it. And long story short, in 5 years' time, we were able to set the platform up. And despite having COVID in the middle, develop the content. The platform is for early education. It's for functional literacy. So basically, we set the platform up. It's a gamified app with a backend LMS. And the gamified app is given on tablets in learning kits to the learners in remote areas, in marginalized areas. And they go through the program without a teacher teaching them. The app teaches them. And we did this in 5 years. And I think this is our 6th year. And now we have 600 learners on boarded. And we have now first few learners who did not drop out. The dropout is a big challenge in this space. So are now graduating into out of the program. So this is where we are on T Square. And last year, because my core field has been IT, GRC, governance, risk, and compliance. So I set up a consulting firm, which is called Strategy Consulting, to specially do consulting on this arena. So this is who I am. In all of this, I've done my CISA C-Guide, which is IT governance certification. I've done my PMP. I've done certified independent director, and I don't know what more. So this is what I remember. Absolutely. I understand. That's why I did not attempt to introduce you because I know that it's going to be a very interesting story to listen to. आपने mention किया ना कि एक problem space है जो edtech के अंदर that you and Sadia were trying to kind of cater to, and you did cater to. तो exactly वो क्या problem space थी, क्या motivation थी, क्या solve करना चाह रहे थे? देखिए 2.5 करोड़ बच्चा 2017 में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल गोइंग एज का स्कूल नहीं जा सकता था. एंड एसर एक वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल रिनाउंड रिसर्च कंपनी है जो इस स्पेस में रिसर्च करती है. उसकी रिपोर्ट कहती थी कि 2015 की रिपोर्ट कह रही थी कि अगर हम इसी स्पेस पे गए
तो 2075 तक हम सारे बच्चों को स्कूल में डाल सकेंगे। फ्रॉम 2017 टू डेट वी हैव इंक्रीज 10 मिलियन मोर। 2.5 करोड़ से ये अब हो गया है 3.5 करोड़, क्योंकि बीच में कोविड हुआ, कोविड से ड्रॉप आउट हुए बच्चे, तो फिर फ्लड आए। आप पढ़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमारे पास जो ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल है ना, उस, देखिए स्कूल अगर हम सबको भेज सके तो आइडियल सिचुएशन है, मगर स्कूल नहीं जा पा रहे लोग, क्यों? क्योंकि एक्सेसिबल एक तो स्कूल भी नहीं है इतने। ब्रिक एंड मॉर्टर खड़ा करने की एक फ्रंट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, फिर तो ये स्केल नहीं हो सकता मिलियंस एंड मिलियंस तक unless you have huge amounts of investment। दूसरा, अगर हम डिजिटल लैंडस्केप में देखें तो बहुत सी कंटेंट उर्दू पढ़ने वालों के लिए, उर्दू समझने वालों के लिए नहीं है। तो अगर आप किसी को पढ़ना लिखना सिखाना चाह रहे हैं तो क्या आप उनको अंग्रेजी के कंटेंट से पढ़ना लिखना सिखा सकें? मुश्किल है ना, जिसको अंग्रेजी नहीं समझ आती। तीसरा मसला ये है कि हम जब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हम अनफॉर्चुनेटली उसको जो भी टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन आते हैं जनरली एडटेक में, वो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को केटर नहीं कर पाते, क्योंकि टेक्नोलॉजी परसेप्शन एक्सपेंसिव है। सोल्यूशन हैज टू बी अफोर्डेबल फॉर द मार्केट, या जिनको आप केटर करना चाह रहे हैं। और तीसरा, जब आप सिर्फ फ्रंट एंड एप्स दे देते हैं और बैक एंड पे मॉनिटरिंग नहीं होती, तो फिर नहीं चलता आगे क्या हो रहा है। तो वो सोल्यूशन नहीं होता, वो सिर्फ एक एक्टिविटी बन जाता है। यू डोंट नो कि फील्ड में क्या हो रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर हमने इस सोल्यूशन को डिजाइन किया। और एक और चीज मैं बताना भूल गई, ये प्रॉब्लम में एक एस्पेक्ट है अडल्ट वुमेन का। half of the 220 to 25 million people of Pakistan are women, and half of that, documented half of that them have not been to school. Just imagine the number we're talking about. It's a huge number, and there is no way, दिमाग कहता था उस वक्त कि there is no way they will ever be able to get to literacy, because छोटे मोटे intervention literacy के हो रहे हैं, there is no way you can get all of them into school, and उसमें से एक proportion भी नहीं जा सकता। तो एक सोल्यूशन की जरूरत है। एंड देन जो जो टेक्नोलॉजी कर रही है इतनी सारी, हम चांद पे जा रहे हैं, हम हमारे घरों में, हम हर एक के हाथ में यूट्यूब है, we're listening to foreign language song all over, मगर हम उसको उसके लिए यूज नहीं कर रहे जिससे एक बेनिफिट क्रिएट हो सकता है, एक वॉल्यूम में बेनिफिट क्रिएट हो सकता है। तो बेसिक बस यही था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि एजुकेशन पता है लिटरेसी होनी चाहिए, बट उसको अगर हम लिटरेसी की प्रॉब्लम को, जो बच्चा 7-8 साल का हो गया है वो स्कूल नहीं जा सकता, उसको कोई नॉर्मल स्कूल नहीं बिठाएगा, और ना हमारी स्कूल की कैपेसिटी है। और मिक्स एज के ग्रुप के बच्चे मिलते हैं आपको मोहल्लों में, जो एक साल क्लास में बिठाना भी मुश्किल हो जाता है, वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। एंड बिकॉज द नंबर्स आर ह्यूज, वी 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 फील कि इसको टेक्नोलॉजी इज द conduit which is the magic that we need to use। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लिटरेसी का, स्पेशली जो तालीम बालिगा वाला सेक्टर, एंड आई एम सॉरी अबाउट हिम, ये 2 दिन पहले वी अडॉप्टेड हेलो। हिम एंड ही जस्ट डजंट लीव माय साइड। 2 दिन से यही हो रहा है, मेरी एक अदर दुम है इस घर के अंदर अभी। अ, है तो ये जो तालीम बालिगा वाला सेक्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स आल्सो समथिंग दैट्स क्लोजर टू माय हार्ट आल्सो। बोथ माय ग्रैंडमदर्स, नानी एंड दादी, they couldn't go to school, and one of them because they did not have the resources, and another one because she was from a family who wouldn't let women study, right? So eventually when they got older and when they had kids, the kids, my nanny learned how to read because her kids and other people around her taught her घर के अंदर, and my dadi couldn't. सो वही वही एक्सेस का मसला है। कहीं कम्युनिटीज हैं जो कंजर्वेटिव हैं, कहीं रिसोर्सेज नहीं है। एंड अब आप मुझे बताएं कि इफ फॉर एग्जांपल मेरे घर में जो हाउस हेल्प है, आई कीप ऑन पुशिंग हर के यू स्टार्ट, मतलब तुम सीख लो, मुझसे पढ़ना सीख लो, राइट, आई विल टीच यू। तो इफ शी डजंट हैव अदर पीपल अराउंड हर, वो इतनी उसकी शेम भी है ना, देना कि पीपल वुडंट वांट टू ब्रेक दैट बैरियर। So this idea of you guys in terms of focusing on that segment, that's really important because
जो बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, बूढ़े हैं, मिडल एज के हैं, यंग एज के हैं, वो इस उम्र में पहुंच चुके हैं ना कि फॉर देम ये कहना भी कि मुझे स्कूल जाना है या मुझे पढ़ना नहीं आता, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन टू हैव। तो अब 100% अग्री टू दैट। मुझे थोड़ा सा ये There were बताइए। few cohort, let me add to your insight, या to an insight। मुझे भी इतना पता नहीं था फायजा। गूस बम्पी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम लोग ना एक अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो एक तो पहली मिथ है कि हम पढ़ाना नहीं चाहते। हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग पढ़ना चाहते हैं। सब शायद ना पढ़ना चाहते हो, बट देयर इज अ बिग परसेंटेज हु वांट टू एजुकेट, बिकॉज उनको पता चल गया है कि ये डिवाइड खत्म नहीं होगा। दूसरा जो आप कह रहे हो पढ़ने लिखने का, हमारे पास दो कोहोर्ट्स हैं इस वक्त खवातीन के। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो आपने कहा ना, दे वांट देयर ओन सेफ स्पेस टू लर्न। उनको उधर से अगर उनको दूसरी दफा पूछना है ना, तो वो शर्मिंदा होते हैं, वो एम्बेरस्ड होते हैं कि हम नहीं पूछ सकते क्लासरूम एनवायरनमेंट में। मुझे ये इंसाइट फर्स्ट हैंड इन लोगों जिन जो खवातीन पढ़ रही हैं इस वक्त, उनसे मिली है कि हमें यूं पढ़ने में मजा आता है कि हम 3 दफा सुन ले वीडियो, हमें पता, हमें किसी को बताना नहीं है। दूसरा, एक जो उससे भी बड़ी इंसाइट है, हमारे बच्चे हमारी इज्जत करने लगे हैं। लाइक नॉट, दे वुड नॉट बी डूइंग इट, बट एक बच्चा पढ़ ले और एक माँ ना पढ़े ना, ये शायद हम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं शायद हमने ये देखा नहीं, हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते उस तरह। मगर ये बहुत बड़ी इंसाइट थी कि दिस इज वेरी वेरी empowering। Education is empowering in very different aspects। ये चीज कोड गर्ल्स में भी हमने बहुत देखी है। वी व्हेन शमीम एंड आई स्टार्टेड वी हैड नो आइडिया। हम तो लड़कियों को पढ़ाने की बात कर रहे थे ना, यंग लड़कियां इंटर करके घर में बैठी हम्म। हैं। तो जब इनरोलमेंट आने लगी, सो देयर वाज अ ह्यूज नंबर ऑफ मैरिड वुमेन, 30s में, लेट 30s में है, और लेट 20s में है, अर्ली 30s में। एंड दे वर व्हेन दे केम इन, अ लॉट ऑफ देम सेड दैट दे हैड नो क्लैरिटी कि उनको घर से बाहर निकलने की काम इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट अ लॉट ऑफ देम हैड दिस मोटिवेशन कि हमारे बच्चों को कंप्यूटर आता है, उनको सब आता है, वो हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हम कोडिंग सीख लेंगे ना तो फिर पीपल विल रिस्पेक्ट अस। People also, a lot of women also said that, I remember having this conversation with a group of women and they said कि हमारे हस्बैंड समझते हैं कि वी आर जस्ट इडियट्स, वी डोंट नो एनीथिंग, सो वी वांट टू टेल देम कि मैं कोडिंग सीख सकती हूँ ना। तो एंड वन ऑफ देम लाफिंगली सेड दैट माय हस्बैंड गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस एंड उसको कोडिंग समझ में नहीं आई, और फिर उसने एमबीए किया और वो मार्केटिंग में चला गया। तो अब मैं उसको सीख के दिखाऊंगी कि इंटर की भी औरत है और मुझे कोडिंग आती है, आई कैन बिल्ड वेबसाइट। एंड मैं इस पे इतना हंसी, बिकॉज इट साउंड्स लाइक अ जोक, लाइक इट्स फनी। But when you realize that the pain and humiliation and a lot of other things where they are constantly negated, their value is constantly negated, तो वहां पर ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और खवातीन बहुत सारी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जैक्टली सीखती भी इसीलिए बिकॉज दे वांट टू टीच देयर ओन किड्स। जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा अबाउट द लेसन्स, और कहाँ से शुरू करते हैं, कौन सी क्लासेस के लोग हैं, क्या पढ़ते हैं वो ऐप के थ्रू। Basically, as I said, we're very focused on functional literacy. So as you mentioned, we work with Genetic to build an app and a backend platform to make it happen. फ्रंट एंड ऐप जो है वो 3 सब्जेक्ट पढ़ाती है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स। सेल्फ लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको एक क्वालिफाइड टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐप में बिल्ट इन ऑडियो इंस्ट्रक्शंस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियो इंस्ट्रक्शंस हैं। इट्स नॉट जस्ट ऑडियो, वीडियो 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 एंड जस्ट वन वे, टू वे कम्युनिकेशन, बिकॉज लर्निंग इज ऑलवेज टू वेज। तो इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स पढ़ाते हैं हम। जीरो से शुरू करते हैं, हम कहते हैं 0 1 2 पढ़ाते हैं। जीरो का मतलब हम बेस बनाए, उनको थोड़ा सा एक फिजिकल से यूज टू करवाया, 1 and then 2। So it's not only literacy, it's functional literacy। We define it as functional literacy because पाकिस्तान की लिटरेसी डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है ना, कलमा पढ़ ले और साइन कर ले। It's a little beyond that। By the end of the course, they're able to read small paragraphs in English and Urdu। They're able to do two-digit maths। छोटा स्कूल से रुका आया वो पढ़ लिया, फार्मेसी फार्मेसी गए वो पढ़ लिया, बाजार गए हिसाब कर लिया। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो नहीं कर पा रहे होते। सो इतना हम उनको एम्पावर कर दें कि या तो वो अगर बच्चा है उस एज ग्रुप का तो वो क्लास 3 में एडमिशन ले ले, या फिर खातून है तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर अपने डेली लाइफ की चीजों में उसको यूज करनी। एजुकेशन तो अभी एक यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, एजुकेशन जो एजुकेटेड माँ है
और 50% चांस इतने 5 साल के बच्चे को जिंदा रहने का बढ़ा देती है। तो मतलब और क्या इसकी रीजन हो सकती है टू एजुकेट मदर्स एंड टू एजुकेट चिल्ड्रन। क्लास 2 तक हमारा नेशनल करिकुलम के साथ मैप है, तो कॉल्ड फंक्शनल लिटरेसी, ताकि ताकि लोगों को समझ आए कि इट्स नॉट जस्ट राइटिंग कलमा और रीडिंग कलमा एंड राइटिंग सिग्नेचर, तीनों सब्जेक्ट करवा देते, इंग्लिश उर्दू मैथ्स। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। पता है छोटी छोटी चीजें जो पढ़ने नहीं आती ना, ये बड़ा एक मेरा ओह क्योंकि सॉरी, बहुत। जी let जी। me cut you here. We did a writing tool also. So the great हम्म। technology partners we had, जिससे हमें 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 ना टीचर की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक दफे टीचर डिपेंड हो जाता है तो आपका मॉडल डिजिटली आप मॉनिटर नहीं कर सकते। So there was a whole writing tool designed by the very competent team at Genetech, and they did a customized writing tool. And now that writing tool is teaching everyone to write English, Urdu, Maths, and now we can do Chinese also. So we can do any language through that writing tool now. या एग्जैक्टली, यही मैं बात कह रही थी आपसे कि जो फंक्शनल लिटरेसी है ना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर विमेन। बिकॉज Hmm. जैसे अब मेरी जो मैं अपनी हाउस कीपर की एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ women also around me because I do work with a lot of philanthropy work, तो मेरा बहुत जो है वो बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं ना, वो बिल्कुल मार्जिनलाइज क्लास से बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है, स्पेशली डिफरेंट कम्युनिटीज जो हमारे पास, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके साथ। तो ये ऑलमोस्ट उन खवातीन को जिनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला या इतना पढ़ लिख नहीं सकती, तो बच्चों की डायरी में जब नोट्स आते हैं ना, तो वो फिर दे विल कम एंड आस्क यू कि मुझे पढ़ के दे दे। सो मेरी जो हाउस कीपर है, शी वुड कम टू मी कि ये जो ना ये आया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा हुआ है, इस तरह की चीजें। तो वो लैब बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, जरूरी है। हम्म। लैब रिपोर्ट्स, मतलब या लैब लैब रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स, आप, हाँ। हाँ मतलब आप, फैजा एक केस जो मुझे बहुत, मैं कोट भी करती हूँ, मतलब ये कॉमन चीज है पाकिस्तान में कि माँ एक्सपायर्ड दवा पिला देती है क्योंकि वो डेट नहीं पढ़ सकती है। डेट नहीं पढ़ सकते। हम्म। और ये एक इंसिडेंट नहीं मिलेगा आपको, जब मैं शेयर करती हूँ तो वो मुझे मुझे बताया जाता है कि हमने भी सुना है ऐसा। हाँ दिस ये इससे ये दिस इज सीरियस, राइट? हाँ। एक्सपायर्ड दवा के अलावा गलत दवा भी पिला सकते हैं ना, आपको नाम हाँ पढ़ना नहीं आ रहा। अब एग्जैक्टली। मैं हमारे मुझे जो है वो, मैं आई वाज वर्किंग विद अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, तो उसमें जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो सारे के सारे जो है वो होते हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते। तो मुझे उन्होंने बताया कि वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो व्हाट्सएप से वॉइस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा यार फोन नंबर कैसे सेव करते हैं। तो आई बेसिकली आस्क जो हमारे मोहल्ले में जो है वो एक गेट कीपर था, एंड ही वाज नॉट दैट एजुकेटेड। मैंने उसको रोका, मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ फोन में नंबर कैसे सेव करते हो, क्या याद करते हो सारे नंबर। एंड ही टोल्ड मी दैट ही यूज्ड टू सेव देम बाय सिंबल्स। सो जो इमोजीज या सिंबल्स हैं उसके थ्रू वो सेव करते हैं। ऑल द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग बाय वॉइस। तो अगेन फॉर हिम ऑल्सो ही सेड के मतलब हिसाब में गलती हो जाती है, लोग जो हैं वो पीपल फ्रॉड हो जाता है, इस तरह की चीजें हैं, बिकॉज अगेन वो एक्सेस ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सकते। मुझे थोड़ा सा जो पाकिस्तान का जो हमें एजुकेशन का तो मतलब आपने बड़े अच्छे से बताया, समझा दी। क्या क्या है लैंडस्केप में, क्या हो रहा है बी टेक के? आर यू होपफुल, आर यू हैप्पी, आर यू डिसअपॉइंटेड, व्हाट इज हैपनिंग? Pastor didn't have an EdTech award this year. ओह माय गॉड। So I can only quote that piece. So हम्म। probably इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए. Probably ज्यादातर players have already been there. But what I would what I would say is that it's better than 5 years ago. ठीक है. इसके दो तीन वजूहात हैं. हमारा कंज्यूमर लेवल पे एक्सेस टू इंटरनेट बेहतर हो गया है, राइट? एंड स्मार्टफोन्स लोगों के पास आ गए. 100 मिलियन प्लस लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, 80 मिलियन प्लस स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं. अगर फिर भी एक एक फिजिकल टीचर हो, जब हम कहते हैं ना कि हमें टीचर की जरूरत नहीं है, लोग पढ़ लेंगे इस प्रोग्राम में, तो किसी को यकीन नहीं आता है अभी भी. मगर क्योंकि अब हम हमारे पास ग्रेजुएट होने लगे हैं लोग, तो लोग यकीन करते हैं. तो ये एक और प्रॉब्लम है टेक का, कि लोग समझते हैं कि टीचर के बगैर तो पढ़ाई नहीं हो सकती. देर इज अ सर्टेन लेवल जो आप हम सब कर रहे होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज. टीचर होता है ना, इट्स अ डिजिटल टीचर दैट्स डूइंग इट. बट हमारे मुल्क में क्योंकि अभी वो कॉन्सेप्ट थोड़ा दूर है, तो वो है.
दूसरा जो जो मुझे नजर आता है, एक स्पेस बहुत बड़ी है। जैसे मैंने कहा ना, हम बहुत फोकस्ड हैं फंक्शनल लिटरेसी पे। कुछ लोग हैं जो बहुत फोकस हैं, जैसे डॉटर लाइन है, वो फोकस्ड हैं ऑन एडिशनल सपोर्ट टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक। कुछ लोग हैं तालीमाबाद एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म जैसे, जो एलएमएस और उन पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कंटेंट पे ज्यादा फोकस हो गए, जैसे। तो उस तरह से एडटेक की स्पेस में प्लेयर्स हैं, अगर हर pocket में एक दो दो प्लेयर हैं। और आप एजुकेशन का चैलेंज समझ लें, मैं हमने तो फोकस किया बॉटम ऑफ द पिरामिड, अर्ली एजुकेशन। पर अगर हम एजुकेशन का चैलेंज देखें तो ट्रस्ट कोड है। अगर आप अगर अभी हम इधर डिस्कशन शुरू करते हैं तो डिस्कशन कहीं और ही चला जाएगा कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो इंडस्ट्री रेडी नहीं है। ये एक डिस्कशन हर प्लेटफॉर्म पे होता है। वो क्यों नहीं है? देयर इज एन इंटरवेंशन नीडेड। देयर इज अ certain edtech that can support that piece, and there are edtechs working on that piece। जैसे मकसद है, जैसे कुछ edtechs है जो बच्चों को प्रेप्स करवा रहे हैं बाहर के एग्जाम्स की, एनकैट सैट वगैरह की, राइट। एथनिक स्पेस इनकरेजिंग है, फ्यू प्लेयर्स हैं। तो वो विजिबिलिटी लाने के लिए, एक इंडस्ट्री बनाने के लिए उतने प्लेयर्स चाहिए होते हैं कि वो इंडस्ट्री बने। और स्पोरेडिक है, क्रॉस द कंट्री स्प्रेड है टेक प्लेयर्स। तो उस तरह से इनकरेजिंग है कि जब हमने शुरू किया उस वक्त से ज्यादा प्लेयर्स हैं, मगर देर इज मच मोर टू बी डन। एंड आई थिंक वो ज्यादा होने से और ज्यादा बढ़ने से उसका जो कहते हैं ना, वॉल्यूम ब्रिंग्स इन मोर पावर टू द इंडस्ट्री, उसकी जरूरत है अभी। और ज्यादातर लोग जो हैं वो, और जाहिर सी बात है, द मनी इज where people are already going to school, ट्यूशन स्पेस में मनी है, स्कूल्स की स्पेस में पेबल है। हमारा मॉडल बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जो हमारा बेनिफिशियरी है वो पैसे नहीं दे सकता। तो चैलेंजिंग स्पेसेस में घुसने के लिए लोग नहीं है, मगर there is a lot of opportunity, as I would say। there is a lot happening, but there is a lot more opportunity। अपॉर्चुनिटी तो समझ गई मैं, पैसे हैं। देखिए पैसे, एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस मॉडल बनाना पड़ता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। स्कूल चल हम्म। रहे हैं ना इतने सारे। दैट्स, हाँ, दैट्स ट्रू। Uh, तो Acha, I'm just letting you know of a few comments. Aisha Mahmood is अच्छा। saying excellent conversation. Shazia is saying that excellent presentation. You're using a tech for societal change. Nasheen, I think she's agreeing on your comment that space बहुत बड़ी है but ज़्यादा काम नहीं हो रहा. She's saying I don't हम्म। see much happening as of now. I'm seeing a few more comments there. कोई specific question नहीं है but I think people are really जी enjoying जी। your presentation. मुझे थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। आपने बताया ना 600 लर्नर्स हैं और टीचर की हम्म। जरूरत। मुझे अभी बताएं कि किस किस इलाके में यू गाइस हैव दोज लिटिल सेंटर्स जहाँ पे बच्चे और या बड़े पढ़ रहे हैं, और वेयर डू यू वांट टू टेक इट। तो फैजा, take it to every part, every corner of Pakistan, that's my answer, but it's going to happen step by step। so जो जो अभी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, हमारा लॉन्ग टर्म गोल तो ये है कि हर एक पढ़ ले। क्योंकि अगर आपने एक एनीवेयर एनी टाइम का सोल्यूशन बना दिया है तो क्यों नहीं? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फंड्स, राइट, गेट इट देयर। अभी हमारे सेंटर्स, हमारे पास 15 सेंटर्स हैं, मेजरली कराची में, क्योंकि हम खुद कराची बेस्ड है। तो जो हम पायलट्स कर रहे थे, जो हम टेस्टिंग कर रहे थे, उसमें हमारे सेंटर ज्यादा कराची में शुरू हुए। मगर कराची के बहुत पसमानदा इलाके, हमने लियारी में भी काम किया है किरण फाउंडेशन के साथ। हम एक सोशल बॉन्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके 5 स्कूल्स हैं, हमने उनके साथ पायलट किया। अब उनके हर स्कूल में एक क्लास बैठती है 3 तालीम की, जिनसे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। अ, फिर हमारे पास मेहरान टाउन में, कराची में ही मेहरान टाउन है, जो पिछले फ्लड्स के डिस्प्लेस लोग हैं, वो है वहां पे खवातीन पढ़ रही हैं। मूसा गोड में हमने बच्चों के साथ काम किया, वो भी आईडीपी का बना हुआ है, आईडीपीस ने बनाया हुआ है। तो ये सेंटर्स कुछ हैं, ये सारे आप समझो कि स्लम्स या फिर सब रूरल टाइप सबर्बन एरियाज नहीं होते बिल्कुल, कोनों कोनों में कराची के। ये कराची तो बड़ा शहर है, फिर लाहौर में भी हमारे पास है।
लाहौर और इस्लामाबाद में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो घरों में पढ़ रहे हैं। तो ये मॉडल है कि आप कहीं भी पढ़ा लो। तो कोई है जो जो सुपरवाइजर है, वो अपने घर में 3 शिफ्ट में बच्चे बुला के पढ़ा रही है। फिर हमारे पास मुल्तान और इस्लामाबाद में घर में पढ़ रहे हैं बच्चे। लाहौर में भी पढ़ रहे हैं, एक कोर्ट हमारा लाहौर में भी है। इस्लामाबाद में हमारा एक एक बैच है जो घर में बैठ के पढ़ रहा है। एक कोहॉर्ट अभी हमारा एक स्कूल सिस्टम के साथ हमने अटैच किया, और अब एक बड़ा कोहॉर्ट हम एक और स्कूल सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हैं। क्योंकि जो 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 स्कूल सिस्टम्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में काम करते हैं, उनके दरवाजे खटखटाते रहते हैं लोग जो जिनके बच्चे ऑफ एज हो गए हैं। तो उनको ये सोल्यूशन बहुत हेल्पफुल लग रहा है। तो इस वक्त हमारे पास जो ये 600 बच्चे हैं, उसमें से आप समझे कुछ तो 100 के करीब ड्रॉप आउट भी हो चुके होंगे अब तक। मगर जो अभी पढ़ रहे हैं वो इन 15 सेंटर्स में मिल मिला के पढ़ रहे हैं। और एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग। नाउ वी आर ऑनबोर्डिंग बिगर कोहॉर्ट्स, बिकॉज एक टेक्नोलॉजी तैयार करने में टाइम लगता है, उसको टेस्ट करने में टाइम लगता है। बट नाउ द मैजिक इज हैपनिंग, if I were to put it. So now the technology is running, the learning outcomes are being proven. So now we are growing one community to the other, to the other, to the other. सो आपने मेंशन किया मेनली कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद एंड लाहौर आई थिंक। सो इसमें who do you who what kind of people are you looking for, what kind of organization, किससे पार्टनर कर सकते हैं ताकि इनको और स्कूल्स में और स्कूल्स के अंदर या और जगहों पे इम्प्लीमेंट कर सकें? are there any specific organization that you think can be a good resource? Are there individuals who can help you? इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। Okay, this is great, and this is what I wanted to get out also. So if you have a group of people who've never been to school, any age group, and you want to do it, कहीं पे भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी वर्क्स लाइक दैट। आइडियली ये वो लोग होने चाहिए जो ऑलरेडी कम्युनिटी में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी वर्क इज कम्युनिटी के लोगों को एंगेज करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो हम जनरली उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो ऑलरेडी कम्युनिटी में होते हैं। जितने भी मैंने अभी आपको पार्टनर्स का बताया, वो सब लोग कम्युनिटी में कोई ना कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं। उस इंटरवेंशन का पार्ट होता है एजुकेशन, या प्राइमरी पार्ट होता है, या एक सब का पार्ट होता है। जैसे मैंने सोशल बॉन्ड वेलफेयर स्कूल बताया, ये चेन ऑफ स्कूल है जो अंडर प्रिविलेज एरियाज में चल रहे हैं। ठीक है, इन इन इनके पास जब एक मिक्स एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, तो वो उनको केटर नहीं कर सकते मैन्युअली। अगर अगर कोई स्कूल चला रहा है अंडर प्रिविलेज एरिया में या मार्जिनलाइज एरिया में पाकिस्तान में कहीं पे भी, और उनको उनके पास ऐसे बच्चे हैं जिनको वो केटर करना चाह रहे हैं, इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनको वो एक क्लास सेशन में एक टीचर के साथ नहीं केटर कर सकते, और उनको वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हैं ताकि वो 1 साल में क्लास 2 तक पढ़ लें। वरना बच्चे को 3 साल लग जाते हैं। 3 साल तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना एक बच्चा जो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। एक तो वो हो गए जो ऑलरेडी, जिनका कोर काम यही है, और उनके पास ऐसे बच्चे हैं जिनको वो केटर नहीं कर पा रहे, और वो मिक्स एज ग्रुप के बच्चे हैं। दूसरा मॉडल ये है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट में लोग हैं। जैसे मेहरान टाउन में देयर इज अ फहमीदा बेगम फाउंडेशन दैट डज लॉट ऑफ अदर थिंग्स। उनके क्लिनिक भी हैं, वो लंचेस भी देते हैं, राशन भी देते हैं, एंड देन इन एडिशन टू दैट दे रन अ स्कूल आल्सो, एंड इन एडिशन टू दैट दे डूइंग अडल्ट लिटरेसी एंड सम अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वुमेन। तो वहां पे जहाँ अडल्ट लिटरेसी का पार्ट आता है, वहां पे टीचर को खड़े रह के पढ़ाने से बेहतर है कि हम एक स्टैंडर्ड एक टीचर को ट्रेन करना मुश्किल होता है ना उस कम्युनिटी की। वो उस क्वालिटी की एजुकेशन तो नहीं दे सकता। तो फिर इस तरह की कम्युनिटी इंडेवर्स में या रूरल कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। तो हमें फीडबैक आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। सो एक जो ऑलरेडी स्कूल चला रहे हैं वो एक्सटेंड करना चाह रहे हो अपना इनपुट, एक जो कम्युनिटी में एजुकेशन में काम करे। तीसरा फायदा जो मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंगली सामने आया, जब आप, मैं कह रही हूँ ना, एक बिजनेस मॉडल बनाने की बात होती है, यू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन द बिगनिंग। सो ये जो दो दो खवातीन घरों में बना रही हैं, दिस इज ऑल्सो व्हाट यू वांट टू एक्सटेंड। अगर वो 20 लोग जमा करके दिन में 2 शिफ्ट में पढ़ा सकते हैं, तो देयर इज अ बिजनेस मॉडल टू ऑल ऑफ दिस। So the way we fund it is there are some people who are subscribing to this solution and directly paying us as a partner to give them this service. Some can't afford to give us the subscription. So we go out, find the sponsors for them. तो ये खवातीन के लिए हम स्पॉन्सर ढूंढ के लेकर आए हैं, and they're enabling the children in their own communities, in their own mohallas,
कि ये मोहल्ले लेवल पे ले जाने की जरूरत है, स्पेशली लड़कियों के लिए। मुल्तान में इस वक्त 11 लड़कियां हैं जो टर्म 3 खत्म कर रही है इंशाल्लाह, और दिसंबर में वो क्लास 3 रेडी हो जाएंगी। पॉसिबल नहीं था अगर हम वेट करते उनको स्कूल में डालने को। तो ये 3 मॉडल्स हैं जिसपे हम फोकस्ड हैं। आई आई अगेन, मेरे अभी आप बोल रही थी तो मैं लिस्ट बना रही थी ऑफ पीपल दैट आई कुड थिंक ऑफ दैट आई कैन कनेक्ट यू। छोटे छोटे, बिकॉज मेरे जहन में ये था कि मे बी दिस इज something that runs via CSR of companies, but if it's done by individuals and smaller organizations, then I think I'm happy to connect you with a few people that I will do. मेरी लिस्ट लंबी होती जा रही है आपकी बात सुनते सुनते। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा दिस सा इज व्हाट ये, वी नीड फायजा। दिस इज, देखिए मैं और हाँ, सादिया भाई वेरी क्लियर। सादिया जो यहाँ है ये हमारे साथ लगी हुई है, साथ एज एन एडवाइजर है, ठीक है। जो सादिया भी कमेंट भी कर रही है, शी इज अ क्लोज फ्रेंड। I have a network of people who help us get where we are, right? हम्म, But then again, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। ये ट्रू। बहुत बड़ा है, हम सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालना है, जस्ट connecting people. That's what we need right now. अच्छा, एक मुझे बताएं कि जैसे आपने कहा कि एंटरप्रेन्योर को बिजनेस मॉडल बनाना पड़ता है, सो इट्स एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का वेंचर है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ बड़ा ऑफ, मतलब ऑन द फ्रंट रेवेन्यू वाला नहीं है, 10x वाला नहीं है, VC वाला मॉडल नहीं है। लेकिन डिड यू ट्राई गेटिंग इनटू एनी एक्सेलरेटर्स या कोई ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया हो कभी, या कुछ इस एरिया के अंदर कभी देखा हो आपने? मैंने थोड़ा बहुत ग्रांट्स की तरफ हमने देखा था, but things did not materialize. This is a very specialized field, and we do not have resources to actually explore it too much. A, B, what we try to do is do it. Maybe a lot of people will not agree, but we try to keep our costs so low. हमने burn rate बहुत कम रखा है, और शुरू से सादिया एंड आई हैव बीन वॉलंटियरिंग फॉर दिस। सो एक जो बिगर हेड एक्सपेंस था वो तो नीचे आ गया। और दूसरा हमने इसको, हमें पार्टनर्स ऐसे मिले हैं जैसे शमी में जेनेटेक है, यू नो, द द द वो उनके लिए भी एक सोशल वर्क है। वी बीन चार्ज, बट व्हाट वी बीन चार्ज इज नॉट कमर्शियल रेट्स। ये भी हो जाता है कि, और बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स मिले हैं हमें जो हमें हमें चार्ज कर रहे हैं, बट नॉट एट अ वेरी हाई कमर्शियल रेट। ये हमें एडवांटेज रहा है। दूसरा वी थॉट कि अगर हम इसको सिर्फ स्पॉन्सरशिप से चला लेंगे तो वी वोंट डू द हार्ड वर्क, बिजनेस मॉडल नहीं निकल कर आएगा। So we've been pushing for subscription so that the business model strength में निकल कर आए। So what VC कैपिटल इधर आता नहीं है, इम्पैक्ट इन्वेस्टर इतने है नहीं पाकिस्तान में। तो एक तरह का जो इम्पैक्ट इन्वेस्टर है ना, हमारे लिए वो स्पॉन्सर है। जो हमारा स्पॉन्सर है ना, वो हमें इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट दे रहा है, और वो उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम अपने कोहॉर्ट बना रहे हैं। सो इनिशियल जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो हमने बूटस्ट्रैप किया है, मैंने और सादिया ने। मगर अब जो हो रहा है ना, जो स्केलिंग हो रही है ना, वो इन इम्पैक्ट इन्वेस्टर से हो रही है, जो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं या स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। तो वो स्केलिंग में वहां आप यूज करें, कहीं जरूरत पड़ेगी तो वी विल गो आउट गेट दोस फंड्स। बट मुझे जो हमें समझ आया, बिजनेस मॉडल इसका, इस बिजनेस मॉडल जब बनेगा तब वी कैन गेट मोर लर्नर्स। एक SaaS मॉडल है, ये सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल है ना। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल सस्टेनेबली बन जाता है वॉल्यूम पे। और जैसे मैंने कहा, ये सोशल एंटरप्राइज है। सो सादिया एंड आई आर वॉलंटियरिंग ओवर हियर। सो वी डोंट, वो हमने ऑलरेडी सब्सिडाइज कर दिया। So this is हम्म, how we're making it happen. So it's maybe हम्म, not very commercial thing, but like, when again, somebody has to put in that time, right? yeah. Absolutely. I 100% agree with what you said, but I also have another thing that I've learned recently, and that is कि a lot of time, जैसे मैं और शमीम है, so we, जैसे आप T-Square के लिए टाइम वॉलंटियर करती है, we do it for Code Girls. Code Girls तो सोशल एंटरप्राइज नहीं है, वो तो कम्प्लीटली जो है वो स्पॉन्सरशिप मॉडल के ऊपर चलता है, एंड वी डोंट गेट पेड। जो फाउंडर्स की टीम है, वी डोंट गेट पेड, जो एग्जीक्यूशन की टीम है, दैट गेट्स पेड। तो सो वो चल सकता है, कोड गर्ल्स चल सकता है, बिकॉज हम पैसे रेज तो सिर्फ स्पॉन्सर से कर रहे हैं। But if you want to scale it, like in your case, so do you not think thinking about impact investors and also being able to draw money, draw like a little bit of salary for yourself would make it more sustainable? Because मैं अभी जब कैटरपिलर के लिए चीजें देखती थी, कोई के लिए देखती थी, तो मुझे एक रिपीटेड, आई स्पोक टू सो मेनी mentors, मतलब outside of Pakistan, and every single one of them said to me that ठीक है, यू आर डूइंग यू आर गिविंग आउट अ लॉट ऑफ टाइम, और तुम्हारे टाइम की वर्थ के पैसे इसमें से नहीं निकल सकते, बट यू नीड टू गेट योर सेल्फ
get some money out of yourself also, and be From business Code उसी Girls? वक्त sustain. नहीं नहीं, not for Code Girls, I'm talking about Caterpillars. मुझे और हिरा को बहुत सारी एडवाइस मिली कैटरपिलर्स के लिए. कोड गर्ल्स और नॉन प्रॉफिट है ना, दैट्स अ कंप्लीटली सेपरेट. तो कैटरपिलर्स के लिए दे केप्ट ऑन टेलिंग अस, क्योंकि हमारा एडटेक है, हम एक्सटेंडेड लर्निंग करते हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा लर्निंग करा रहे हैं ऊपर से. तो यू नीड टू बी एबल टू ड्रॉ सम मनी. ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक सस्टेनेबल नहीं होती जब तक फाउंडर्स आर नॉट गेटिंग पेड. बिल्कुल और ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल. माइंडसेट नहीं था. ये दिस इज समथिंग दैट हैपेंड टू मी रियली रिसेंटली व्हेन आई वाज ट्राइंग टू काइंड ऑफ लर्न कि अच्छा क्या है. इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के अंदर आई थिंक कुछ बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको शायद आप पिच कर सकते हो ये सोल्यूशन. एंड दे कैन व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन गिव यू अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. सो एक तो ग्रांट्स होती है ना कि आपने अपना प्रोजेक्ट उनको पिच किया, उन्होंने उसके लिए आपको पैसे दे दिए, आपने प्रोग्राम डील कर दिया. एक ही होता है कि यू बेसिकली टेल देम अ टारगेटेड एरिया. जैसे आपने फ्लड अफेक्टेड एरियाज की बात की, मे बी अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज है, मे बी You attending टेररिज्म अफेक्ट. meetings with us? Are you attending meetings with us? I am actually trying to talk to a lot of people No, no, about actually, it. are you attending meetings with us? मैं काट रही हूँ. No, I'm Exactly ये not. I'm discussion not. हो रहा है. Exactly ये Because discussion हो रहा है. हाँ, because I am telling you कि ये जो एक कस्टम प्रोग्राम है ना, दैट कैन, और उस इलाकों में आप चले जाएंगे जहाँ पे आप जनरली नहीं जा सकते, क्योंकि Exactly. वहां के लिए फिर you should be able to raise some good money. But again, I'm going to write emails tonight connecting you with a few people because I think that should Exactly यही कर रहे हैं फायदा. not इस come वक्त we in. are approaching corporates and Hmm. we're telling them if they're trying to create impact in a certain area, Hmm. corporate or any organization. We're in touch with a lot of organizations right Hmm. now, and we're telling them this is a program they can onboard. It's faster, better quality, and better value for money. Hmm. Hmm. And they onboard us, and that's the investment we get to sustain us. So and the other our question, founders picking money. Inshallah, one day when we break an even, we will be able to pick some drawings out of it. But this is not the core. That's why I do consulting also. So that is also where I balance things off. And honestly, it's also a big passion project. आप लोग तो मेरे साथ रहे हो शुरू से, so Shamim, and you know that it's a big passion project for me and Sadia. And we strongly feel that एटलीस्ट अपनी जिंदगियों में एक ऐसा काम कर ले जो 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 अपने पीछे भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता रहे. Hmm. और इट्स नॉट दैट वी डोंट नीड मनी, एवरीबॉडी नीड्स मनी, बट देयर इज अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते खोल देता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये स्टोरी किसी और दिन सुनाऊंगी. काफी रास्ते खोलता है. और as I said, we bootstrapped it. We got it to a certain stage, up and running for pilot, and then after that, we've been supported by impact investors, sponsors, subscriptions. So we've been very lucky in that way. And right now also, because it's a real problem ना, तो जो उस real problem को solve करने की कोशिश कर रहे हैं, they come to it. They understand it and they come to it. Hmm. And ये Hmm. बिल्कुल program based investment को ही हम grant investment की तरह समझ के लेके चल रहे हैं. क्योंकि that Hmm. is where you get the bigger cohorts, the bigger money keeps coming in. We are able to sustain every month to month. एक challenge होता है एक social enterprise को चलाना. And having said that, Satya and I volunteer, but there is a team that we have to pay. There is a team we have to pay. We have to pay for hosting. There are expenses to pay, right? So it's not a lot of people ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको जो समझते हैं क्योंकि आप वॉट एवर द पिरामिड के लिए काम करें या मार्जिनाइज कम्युनिटीज के काम करें तो आप ऐसे ही फ्री में दे देंगे सर्विस. तो उनको समझाना पड़ता है कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन एंड देयर आर बिल्स टू पे एंड सैलरीज टू पे. On that note, पता है, मेरी recommendation ये है कि if you are looking for impact investors, look outside of Pakistan. My experience, 14 years of working with local organizations, was not that good. And then also when it comes to working on these sort of projects, Code Girls को ले लें, Caterpillars को ले लें, कुछ local organizations are very good with that. ठीक है, really good. But a lot of funders, you will find कि the money is not that much for you to sustain. मतलब काम बहुत बड़ा है, पैसे बहुत थोड़े हैं. सो आपके लिए जो है वो आपकी टीम में, अच्छा अगेन एट द सेम टाइम, जो ये एक रिपीटेड कॉन्वर्जेशन है दैट आई हैव विद एवरीबॉडी, अगर मुझे अच्छा प्रोग्राम चलाना है ना, तो मुझे अच्छी टीम हायर करनी है. अच्छी टीम महंगी होती है.
सही है ना, मैं किसी को 25,000 पे देके हायर नहीं कर सकती. Then I need to pay them whatever they deserve to make sure that they like the work that they are doing. They are not doing charity. For them, it's a job that runs their household. So for having a team, for having a very good team, you need to give them good money. And for that, of course, you need money. So मुझे जो है वो I've always found it easier to make money outside of Pakistan and also raise money outside of Pakistan. I find it easier because a lot of these people, they understand when you tell them the problems, they understand and they also want to do some good. And for them, that's not a lot of money. So अगर कोई आपको USD में $1,000 दे रहा है, उसके लिए वो $1,000 है. आपके लिए यहाँ पे 2,80,000 रुपए, it's a huge like difference, right? सो मैं कॉन्स्टेंटली, मैं और हिरा हम यही बात करते रहते हैं कि हम लोकल, जब भी हम कोई प्रोग्राम सोचते हैं विद डिजाइनर, तो सबसे पहला हमारा जो है ना वो फोकस ये होता है कि वी पिच इट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमें वहां से रिसोर्सेज भी बहुत अच्छी मिलती हैं. वो इस तरह से मिलेंगी, दे विल असाइन यू अ मेंटोर, दे विल असाइन यू एन एमएनई का एक्सपर्ट, दे विल असाइन यू 5,000 और चीजें, जिसमें अगर हिरा और मुझे पैसे नहीं भी मिल रहे तो हमारी लर्निंग हो, राइट. एंड वी नो कि अच्छा ये तो ऐसे चलता है, बाहर के प्रोग्राम में ऐसे चल रहा है, अफ्रीका में ये ऐसे चल रहा है, केन्या में ये ऐसे चल रहा है. सो दैट्स समथिंग दैट आई थिंक कि वो हमारी अपना भी थोड़ा सा जो टूल बैग है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. हम एक एक इस सवाल इस जो. इसमें जी. मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स बाहर से ही दे रहे हैं पैसे। तो वही वाली बात है, $1,000 बाहर से दे देना लोगों के लिए आसान होता है, $500, $300, 300 पाउंड, इट्स नॉट बिग मनी फॉर देम, बट यहाँ पे 300 $300 में दो बच्चे पढ़ लेते हैं। तो it is big impact, right? So yes, there's a big network out there who's supporting us. Not, I'm not going to say locally नहीं support मिलता, मगर बाहर से ज्यादा support मिल हाँ. जाता है। हाँ. और हाँ, शुरू में आपकी बात करेंसी का सही है कि डिफरेंस है बाहर ना. से लोगों को समझ भी, ये जो जिस केस में हम काम करें ना, इसकी समझ भी यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है समझाना कि ये हो रहा है, ये इस तरह हो जाता है, इस तरह लोग कर लेते हैं। इट इज चैलेंजिंग टू एक्सप्लेन ऑल्सो। सो और अब क्योंकि 500 हो गए तो हम कहते हैं आके देख ले। हमारा जवाब ये होता है आके देख ले। बिल्कुल तो इट इज बिल्कुल. हैपनिंग, लोकल भी हो रहा है अब, बाहर से भी हो रहा है, हम्म. अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अगर ऑफलाइन हम बात कर लेंगे, कोई अच्छा इम्पैक्ट इन्वेस्टर है, वी आर हैप्पी टू पिच टू देम बिकॉज वी हैव अ हम्म. फ्यू प्रोजेक्ट्स दैट वी नीड टू गेट अप एंड रनिंग। देखो अब एक चीज शुरू कर दी है ना, so now we need to have customized programs for different sectors. When we have 3 to 5, we need to talk about when जब हम 0 to 2 की बात करते हैं तो जहां जाते हैं वो कहते हैं 3 to 5 के लिए क्या करेंगे। हमने कहा हम करेंगे, मगर then again everything requires energy, investment, resources. This was not an easy one बिकॉज ये स्पेस बहुत मुश्किल है। हम्म. एक अनपढ़ को पढ़ाना डिजिटली, वो पढ़ नहीं सकता, उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे। हमारे हर लेसन में एक ऑडियो स्क्रिप्ट अलग लिखी गई है और उस ऑडियो की रिकॉर्डिंग अलग ली गई है। Absolutely, absolutely. A question that's of my personal interest, because I am also someone who does a lot of consulting to sustain myself, to make sure that I input a lot of time in impact projects. Uh, Burnout नहीं होता? ऐसा साइकिल्स होती हैं आजकल। अगर पूछो, जैसे मैं आज कह रही थी ना शुरू करते वक्त के, आई एम डबल बुकिंग एवरीथिंग बिकॉज देयर इज सो मच हैपनिंग। आई एक होता है ना, आपका दिल चाहता है 24 आवर्स 48 आवर्स हो जाए। बर्नआउट हो रहा है, होता है, बट द वे आई डू इट इज देन आई टेक शॉर्ट ब्रेक्स। आई ट्राई टू टेक दैट 1 day off, switch off and not do nothing then। फिर वो 2 महीने में एक दिन इस तरह, या आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक आउटसाइड ऑफ होम। सो बर्नआउट होता है, बर्नआउट होता है, ये तो कहना गलत होगा ना। Hmm. बहुत थ्रेड्स And चल what रहे होते हैं ना, about, जब आप कंसल्टिंग करते हैं हाँ, तो बहुत थ्रेड्स चल रहे होते हैं आपके। एग्जैक्टली. एंड देन मुझे मुझे तो ऐसे भी लगता है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार मैं, बिकॉज टू सस्टेन माई सेल्फ आई एम डूइंग कंसल्टिंग, अगर ये कंसल्टिंग ना हो एंड आई एम एबल टू मेक गुड इनफ मनी फ्रॉम अपना इम्पैक्ट का काम है, इतना के चल जाए. सो ऐसा नहीं होगा कि मेरी अच्छी वाली बहुत सारी एनर्जी यहाँ लग जाएगी, बिकॉज कंसल्टिंग का काम जो है वो क्रिएटिव काम है, इट्स टफ वर्क. I find it tougher than anything else that I do. The reason being that you are working most of the time you're working with a new client, you are working with on a difficult problem जो client खुद solve नहीं कर सकता. So in that case मुझे आई थिंक मेरे लिए ये एक बड़ा
चैलेंज अब है और रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि यू गेट क्रिएटिवली एम्प्टी और आप ऑटो पायलट पे रन करना शुरू कर देते हैं एंड देन यू फील कि यार ये तो दैट्स नॉट हाउ हाउ इट शुड हैपन। लेकिन या एब्सोल्युटली ऐसा है। कंसल्टिंग का ये थोड़ा सा बिल्कुल बताओ। ऑपोजिट होता है। अच्छा। नहीं, ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मैं एक काम रेपिटेटिवली नहीं कर सकती। So every time a new problem to solve keeps me going. So Of course it does, of consulting course it does. side पे, But हाँ, but it it keeps you but it going. wears you down also after a while, मतलब अच्छा, उसमें भी 2012 मैं जो कंसल्टिंग से। कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल टीम्स बनाई हैं, उसमें भी मैं आई एम नॉट अटेम्प्टिंग टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। सो कंसल्टिंग में आई एम वेरी फोकस्ड राइट नाउ। आई एम वर्किंग ऑन द स्पेस ऑफ इन IT governance, risk and compliance. So this is what strategy consulting is doing, and we're very very focused because although मेरा experience जैसे मैंने बताया बहुत broader है, but what I felt was from a business point of view also, and from my own skills point of view, and from my interest point of view, um, that there is a big gap for IT GRC here, at least locally. और अभी मैंने शुरू नहीं किया तो सबने कहा बाहर भी बहुत बड़ा गैप है। मैंने कहा चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पेस में आ गए। एंड उसमें भी दो एरियाज पे मैं फोकस कर रही हूँ। एक है ट्रेनिंग मटेरियल। So the first project I started on this platform was developing a technology assurance certificate course for LCAT with some advisors and other professionals who helped us develop that. And now we finished the second cohort of that course. And वो course है financial professionals के लिए जिनको आप technology assurance बता रहे हैं। So it's a very very senior level professional course, and it is so enriching to attend those classes because जब आप you go to do those boot camps, तो आपको पता है कि जब आप इस किस्म के cohorts में बैठते हैं as a trainer also, as an organizer also, as a person of expertise on that topic, you learn so much. You still learn so much when you sit with इतना perspective मिलता है। फिर मैं इस तरह की कंसल्टिंग कर रही हूँ कि आई एम पिकिंग अप IT risk management. IT risk management is what balances your benefits and risks, right? If you're not managing your risk, then whatever you're investing is going down the drain at the end of the day because your controls are weak. I'm focusing on those areas. Then I'm doing CIO advisory. As I said, Rabi, I was just onboarded as a CTO for a startup in New York. So I'm doing very selective projects which are what I've been doing in my professional career. And I'm trying to build up teams, healthy teams to do it because there are a lot of cool people who do not want to anymore do 9 to 5, who want to pick projects and do them. So I'm trying to make that work in consulting. आगे देखो, there's a lot of focus on ATGRC training also because उसमें भी बहुत गैप है। कुछ पार्टनर्स के साथ बात हो रही है टेक्नोलॉजी गवर्नेंस ट्रेनिंग पे। एंड देयर आर पूरे प्रोफेशनल्स, एक एक वो भी एक तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी एश्योरेंस का कोर्स था। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बीन टीचिंग सीसा फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट सीसा एक एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत सारे रीजंस की वजह से फाइनेंस के लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। तो उस टॉपिक को केटर करना फॉर स्पेशलाइज्ड ऑडियंस is something that is a problem. The domain knowledge is there, and there are a lot of people who you can utilize and use their experience to make it happen. So this is what I think is the strength when you do a consulting platform. You have to be very flexible, and although आप अपना बाउंड्री डिफाइन करते हैं, but उस बाउंड्री के अंदर बहुत सारी चीजें फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होती हैं। राइट। सही। I just one last question. I think we are nearly end of the time. Women in tech में we have a lot of women, 10,000 खवातीन हैं। बहुत सारों का इंटरेस्ट होगा टेक के अंदर एंड हु वुड वांट टू वर्क इन दैट इम्पैक्ट एरिया। कोई एडवाइस है उनके लिए, या यू थिंक इज देयर एनी वे दैट दे कैन हेल्प यू विद टी स्क्वायर, एनीथिंग दैट दे कैन डू फॉर यू, प्लीज बताइए। तो मैं दो चीजें मैंने कहा था ना, मैं कुछ भूल रही हूँ। तो आई एम इसाका कराची चैप्टर पे आई एम ऑन देयर बोर्ड and I'm the director IT governance, and I'm also the She Leads Tech liaison. So that's an initiative that is for women in tech. That is an initiative that helps women in middle management grow up to a senior management role. And I also was supported by another ex-colleague to set up Women in Cybersecurity Pakistan affiliate back in 2021. So that's another platform that women in tech women can use
there's a lot of international exposure one gets through these platforms. And there are a lot of freebies around. We just need to get out there and explore them. So ये तो हो गया जो where I can help the women in tech, right? Directly through these two platforms. अभी हम Women in Cybersecurity Pakistan affiliate को थोड़ा और active कर रहे हैं, and we would want people go to the website. We've negotiated very attractive annual subscription from $90. We've got them down to $20. So if you want to apply, get in touch, DM me, and I will share the code. And you can be part of that network. They give you free training, they give you free mentorship, they scholarships तक जा सकते हैं आप. So there is a lot of free opportunity around if you want to step जो थोड़ा सा मुझे women का challenge लगता है ना, वो step out of their comfort zone नहीं होते. थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आउट जाकर आप देखें तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं. मैं आई थिंक किसी पॉइंट पे आपके उस पर थोड़ा सा डाल भी देती हूँ वुमेन इन टेक पे, ताकि लोगों को वेबसाइट एड्रेस वगैरह मिल जाए. हाउ दे कैन हेल्प टी स्क्वायर. एवरीबडी कैन हेल्प टी स्क्वायर. सबसे पहले हेल्प अस कनेक्ट विद कम्युनिटी पार्टनर, जो मैंने डिफाइन किया. जो लोग कम्युनिटी में बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, अडल्ट को पढ़ाना चाह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं टीचर्स के साथ, कंटेंट के साथ, टीचर ट्रेनिंग के साथ, कनेक्ट अस विद देम. we will we claim to be much better quality. Digitized quality is जो बच्ची आप मोहल्ले से लेकर आ रहे हैं, जिसने खुद ही हार्डली इंटर करा है, उससे हम बेहतर क्वालिटी देंगे, उससे हम आपको फास्टर पढ़ाई देंगे, उससे हम आपको मोर मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में सस्ता पढ़ाई देंगे. It will be more affordable. So connect us with anybody who wants to teach anybody in especially in underprivileged areas. क्योंकि वहां पे टीचर को ले जाना बहुत मुश्किल काम है. रूरल एरियाज where now कुछ हम इनिशिएटिव्स, कुछ बातें हो रही हैं हमारी, जहां हम इंशाल्लाह we will start in rurals also with the right partners. So connect us with the partners, talk about us. एक तो बहुत बड़ा काम सभी कर सकते हैं. दूसरा, if you want to sponsor our learners, we are always actively looking for sponsors. Right now we are onboarding a cohort of 100 learners in Islamabad, and if you want to sponsor even one, even half, let us know. Go to our website, it's enabled for payments. Go there, do it. It just encourages us. I mean, bigger sponsors mil jate, but it encourages to get that volume, get that pat on the back. Sponsorship is a pat on the back, right? Endorsing on what we are doing. And teesra, talk about us. Generally talk about us. Talk about education. Become advocates of education. Break the myths. Break the myths कि कोई पढ़ना नहीं चाहता, छोड़ो यार इन लोगों को, तो इनको कुछ नहीं करना. Let's not assume things about people we don't really know too well. हो सकता है हमारे जो एक्सपोजर में लोग हैं, मे बी जो हमारी हाउसमेट है या हाउस हेल्प है, वो उसका एटीट्यूड नहीं है, मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं. सो ब्रेक दोस मिथ्स, ब्रेक दोस walls that we've created for ourselves, and think in a very inwardly way. Think externally. Think अगर उनको नहीं पढ़ना है तो शायद किसी ने उनको बताया ही नहीं है कि क्यों पढ़ना है. So we and it is our responsibility, फायदा. मुझे तो ये लगता है शायद इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया. जितना कर सके अपनी अपनी इस्ताद के मुताबिक. मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग खड़े हो जाएं और टी स्क्वायर बना लें, ये सब लोग टी स्क्वायर से बड़ा काम कर ले. अभी तो ये कुछ भी नहीं है ना, और भी बहुत पोटेंशियल है. एटलीस्ट अपने दिमागों में ये मिथ हम तोड़ें. एटलीस्ट ये मेरा मैसेज जरूर है आज के दिन में, कि हम अपने दिमाग में मिथ तोड़ें कि उनको पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ना नहीं है. हमने कुछ रिसर्चेस करी थी जब मैं कॉर्पोरेट्स में थी, और अगर आप देखें तो हमारे रूरल में लोग प्रायोरिटी पे, थर्ड प्रायोरिटी उनका, पहला मवेशी प्रायोरिटी होता है, दूसरा खाना प्रायोरिटी होता है, तीसरा उनके बच्चों की एजुकेशन प्रायोरिटी. और आप मुझे बताया नहीं, मैंने किसी पिछले इंटरव्यू में भी ये बात की, और लोगों ने इसको मतलब मुझे खुद लगा कि ये, अगर कोई बीमार है तो आप पहले दवाई लाएंगे या खाना लाएंगे? दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, फाइजा. वेरी डिफिकल्ट वन. सो लेट्स गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी, ताकि उनके पास उनको ये सवाल में पढ़ना ही ना पड़े, उनके लिए डिलेमा ही ना बने. This is my message. Yeah, absolutely. Because when they have to pick and choose, education will always become secondary. अगर किसी का बच्चा बीमार है, अगर आपके पास रेंट के पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं है, तो फिर education will always be something that you can push
सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पहले है ना, एजुकेशन बाद में, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज गोइंग टू किक इन। और मैं एक दफा और कम्युनिटी पार्टनर डिफाइन कर देती हूँ, या तो वो स्कूल हो जो अंडर प्रिविलेज में चल रहा हो, या कोई कॉर्पोरेट हो जो किसी कम्युनिटी को अडॉप्ट करा हुआ हो, उस कॉर्पोरेट के साथ हम काम कर सकते हैं, या फिर आप कोई खुद ही कोहॉर्ट खड़ा करना चाह रहे हैं, या कम्युनिटी में लोग डेवलपमेंट कर रहे हो, उसका पार्ट एजुकेशन हो। ये चारों तरीके के लोग हैं जिनके साथ हम ये वेरी एक्टिवली काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आई एम सीइंग देयर आर अ लॉट ऑफ कमेंट्स, मैं आपको लिंक भेज दूंगी वीडियो का, सो दैट यू कैन शेयर इट ऑन नहीं, योर मेरे पास है नेटवर्क्स लिंक, आल्सो। मेरे पास है लिंक, मैं भेज दूंगी आगे। तो थैंक यू सो मच ज़ैनब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। हम वैसे तो सेम आपस हियर में एज बातें ऑलवेज। करते रहते हैं, लेकिन ये कि आई थिंक दिस वाज अ कॉन्वर्जेशन दैट अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू हियर एंड अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इट टेक्स टू डू समथिंग लाइक दिस, एंड हाउ मच करेज इट टेक्स टू काइंड ऑफ गेट इनटू अ स्पेस जो कि इतनी डिफिकल्ट है, और अपनी कितनी लर्निंग हमें करनी पड़ती है। अगर मैं अपने आप को देखूं, pre women in tech days I was a different person, pre code girls days I was a different person. मतलब the amount of learning that and unlearning you need to do to understand other people is just a very big leap of faith. Thank you so much. Always a pleasure to talk to you, and you will receive a lot of emails from me now. थैंक यू सो मच फायजा, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। मैं बहुत टाइम से बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करना चाह रही थी, बट ईस्टर इज द टॉपिक जिसके लिए we all need to get together and do it. So thank you for hosting us. Thank you to all the partners, everybody who sponsored our learners, everybody who's made us get here where we are. And in advance, thank you to all of the women who will help us get further, because it is a collaboration. हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते. And it is just a matter of connecting us and connecting the dots and making it happen. So it was a pleasure being here as always. And of course, आपके साथ तो गप लगाने का अलग ही मजा है. So Thank you till so next much. time. Until next time, चलो, take care. Hafiz. thank you. Allah Hafiz.